कि बच्चा सैटरडे संडे भी बोलता है कि मुझे स्कूल जाना, मुझे अप्राइजर्स जाना है। सो आई थिंक वो बहुत इट रियली मेल्स आवर हार्ट कि Hello and welcome to today's podcast. So, the first 6 years of life decides what we become today, and it's up to you how we make it full of fun, curiosity, and creativity. And today, our guest is doing exactly that, and we have Aisha Fulpal, the founder of Uprisers Matru Mandir. Hello, ma'am, it's nice to have you here. Welcome to Voice. thank you so much. So, ma'am, let's start with your journey, like the background and what inspired you to enter into early childhood education. So to start with, I would say passion. Honestly, I have been into teaching almost 9, 10 years, and I think it's passion that made me come here. I really enjoy what I do. I love being with children, and I felt that over the time during my teaching career, I felt that I there was a point where I felt that no, I have to go beyond this now. It's like I have to break this routine. So at a point of my time, I realized that there was a point कि जहाँ पे लगा कि अब बस I have to take a jump now. I'm not meant for this. I have to do something more which resembles me, which I enjoy the most. So that 9 to 5 वाला job या फिर वो regular वाला जो चीज था उससे मुझे बाहर आना था. And I felt कि जितना मैंने सीखा है जो भी अलग अलग बच्चों के साथ एज ग्रुप के साथ मैंने काम किया है. I was also abroad for a 5 years का time. So मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारा कुछ है जो मैं implement कर सकती हूँ. And then came the vision to start my own school that inspired me a lot. And धीरे धीरे आराम से we started working on how things would be because my core was teaching, but I had no experience about business at all. So वो बहुत challenging phase था. It was like एक नया बेबी को कहाँ से कैसे मोल्ड करें कैसे करें धीरे धीरे धीरे. It took a lot of time. It's been 3 years now with 3 branches, but a lot of hard work with a lot of challenges, struggles, and much more. So you wanted to revolutionize into Indian education and जैसे लोग बच्चे जैसे नॉर्मल प्री स्कूल होता है so आपने अपराइजर्स का सोचा. So how अपराइजर्स is different from pre-traditional schools? So how it is different is first of all I think कि this is where I am living my childhood. So I feel कि a preschool is a place where kids should enjoy going to school. So यहाँ से एक शुरुआत होती है बच्चे का. It's a strong foundation. It's the core of a child. तो जब बच्चा प्री स्कूल वाला फेज एंजॉय करेगा मतलब जो एज ग्रुप होता है 0 to 5 years वाला 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस इन दिस एज. तो और बच्चे का ये प्लेफुल जैसा जितना उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उसका आगे का जो रहता है ना प्राइमरी स्कूलिंग एंड सेकेंडरी वो उसके बाद का एक प्रोसेस है. अगर बच्चे का बेस स्ट्रांग हो तो उसके लिए आगे कोई भी चैलेंजेस इजीली हैंडल हो जाते हैं. सो आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं अगर आज मैं देखती हूँ तो इतने चैलेंजेस है सीबीएसई आईसीएसई आईजीसीएसई बहुत कुछ आ रहा है और फर्स्ट टाइम के बाद बच्चों को ये सब करना है बिकॉज टू सर्वाइव इन 21st century skill in this world we have to face all that, we have to go through it. But जो एक सॉफ्ट स्टार्ट जहाँ पे बच्चे को मिलेगा दैट इज अ प्ले बेस्ड अप्रोच एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है. अगर आप बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हो थ्रू बुक्स एंड देन द अदर वे इज यू गो थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चे को ज्यादा वो समझ में आता है. सो मेरा यही रहेगा कि व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज एक्सपीरियंशियल अप्रोच. एक बच्चे को मदरली नेचर जो माँ का प्यार है जो सॉफ्टनेस है जो केयर है जो लव एक बच्चे को चाहिए साथ ही साथ विद द एकेडमिक्स द टीचिंग वो बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना दैट इज व्हाट मेक्स अ प्रेजेंट. So Uprisers blends with global methods and multiple intelligence. Yes. So how do you practically bring that into a child's daily learning? Very good question. I really want to highlight on this कि how we incorporate all of these skills in a child's journey. So हमारा focus है कि बच्चा जो है अब तो स्कूल में आ गया अब उसका जर्नी स्टार्ट होता है कि जो भी 3 घंटे का बच्चे का टाइम हमारे साथ है उसमें हमारा जो थीम है उसको हमने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है कि बच्चा कैसे सीखेगा. सो इसमें आ गया रिच इंडियन वैल्यूज जिसमें सिंपैथी एम्पैथी शेयरिंग केयरिंग ग्रैटिट्यूड रोज एक्टिविटीज होती है जहाँ पे बच्चा ग्रैटिट्यूड करता है. शेयरिंग केयरिंग एक्टिविटीज होती है सिंपैथी एम्पैथी जैसे शेयर अ टॉय शेयर दिस एंड दैट. सो वैल्यूज पे हम फोकस करते हैं जो जो एक दिन में चीज नहीं है कि बच्चा एक दिन में सीख जाए. इट टेक्स टाइम. हमारे जो मंथली लेसन प्लान इस तरीके से बनते हैं कि
हर दिन कुछ ना कुछ बच्चा वैल्यूज पे फोकस कर रहा है। जैसे आपके पहले दिन वैल्यू ये भी हो जाता है कि स्माइल दे देना, सिंपल दूसरे को स्माइल, दैट ऑल्सो शोज द वैल्यू। सो इस तरीके से पूरा मंथली प्लान जब बनता है तो उसमें हर दिन वैल्यूज पे ज्यादा फोकस होता है। थीम बेस्ड करिकुलम में हर महीने हम एक थीम रखते हैं। जैसे मान लो इस महीने का थीम हमारा पेट्रोल पंप है, तो बच्चों को फील्ड ट्रिप लेके जाना, वी प्रेफर गोइंग ऑन एजुकेशन ट्रिप। जो बच्चा रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है, जैसे पेट्रोल पंप में बच्चे बहुत बार जाते हैं बट उसके बारे में क्या नॉलेज है, तो दैट इज हाउ वी फोकस ऑन द थिंग्स लाइक सुपरमार्केट। दिस इज आवर थीम इज पेट्रोल पंप, आवर थीम इज पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके का जो है उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे। सो ये हम लोग प्लानिंग के टाइम पे ही हम लोग मंथली प्लान जब बनाते हैं तभी हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट इज हाउ So डे not टू डे, only that paper book, Ratna and all बियॉन्ड बुक्स, that. आई वुड से बियॉन्ड बुक्स। So हाँ, any heartwarming story of a child कि वहाँ पर parents आके बोल रहे हैं मतलब uprisers has changed because of uprisers it happened. Yes. ऐसी कोई story? लॉट ऑफ स्टोरीज आई थिंक। बच्चा जो है ना वो और ये हमारे साथ भी होता है कि हम जल्दी किस चीज से कनेक्ट करते हैं, किसी के नेचर से या किसी के बात करने के तरीके से, या वो एक अलग एक टच होता है और वो हमेशा हमारे दिमाग में रह जाता है कि अरे यार इस पर्सन का नेचर ऐसा या पर्सनालिटी ऐसी है। तो हमारे जो इस तरह ये मेन रीजन है कि बच्चा स्कूल आना क्यों पसंद करेगा, कि मेरी टीचर है, शी इज माई फेवरेट टीचर। टीचर को रिसेंबल करते हैं और बच्चे टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। सो हमारा काम यही है कि हम टीचर्स पे फोकस करते हैं। जो भी टीचर्स हमारे पास आते हैं, पहले तो सारे लेडीज होते हैं, तो हम लोग लेडीज को फिर उनका ट्रेनिंग, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, वी फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। बट अगर कोई हमारे पास आ रहा है हम उसको पॉलिश करके उस तरीके से बनाते हैं जो हमें चाहिए। तो हमारे सारे टीचर्स जो है वो काफी मदरली है, एंड मदरली, सॉफ्ट, लव, फेयर, फ्रेंडली, बच्चा एक के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। तो वो सारी ट्रेनिंग हम हमारे टीचर्स को देते हैं। आई फील दैट इज, वैसे काफी सारे मेमोरीज हैं जो बच्चे और टीचर के बीच में है। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी आई वुड से कि बच्चा सैटरडे संडे भी बोलता है कि मुझे स्कूल जाना, मुझे अप्राइजर्स जाना है। सो आई थिंक वो बहुत इट, यस, इट रियली मेल्ट्स आवर हार्ट के वी, हमारा जो विजन था कहीं ना कहीं वो हम अचीव कर पा रहे थे। So as a woman entrepreneur and mother of a child, what challenges you faced and how Wise helped you in this? Okay, so challenges for a startup is like एक ऐसा word है, at every point of time being a startup there are a lot of challenges. So आपको कहीं ना कहीं guidance की, mentoring की, you need that support. And I feel कि as I told you, core कि मैं teaching में that was my core and I was best at it. But there were a lot of factors that came in when I wanted to start my school. And kahin na kahin, I wanted someone to support me, and then came Wise in picture. And I really really thank Wise because आज मेरे जो 3 ब्रांचेस हैं उसमें वाइज का बहुत बड़ा बड़ा हाथ है। मेंटोरिंग से लेके, फंडिंग से लेके, गाइडेंस से लेके, रेगुलर इवैल्यूएशंस और बहुत सारी चीजें लीगल में या फिर काफी सारी जो एक स्टार्टअप को जरूरत होती है वो सब में वाइज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड बिकॉज वाइज मुझे उस टाइम पे मिला जब इट वाज जस्ट माय स्टार्ट। एंड स्टार्टअप उस चीज के आगे जो आज 3 ब्रांचेस खड़े हुए हैं उसमें वाइज का ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ है। सो आई रियली रियली थैंक So can you describe Wise in just 3 words? Wise is, I would say, guidance, mentoring, mentorship, and backbone support. 3 words are not enough, I guess. There are a lot of words. Backbone support. They know the pain of an entrepreneur. They know the pain of a startup. And I would feel that, yeah, they are the spine or the backbone of. So what message would you like to give to women entrepreneurs who want to do something in Indian education like you? So I feel कि if I honestly feel that if I can come to this point, everybody can, especially all the ladies out there. And it just if you feel like you create a vision that you can do it, then definitely a lot of things come in, hardship, challenges, struggles, and everything. But you can still make it. And I just want to give one message that believe in yourself and stay consistent, stay determined. You can achieve everything in life. Last question. So where do you see Uprisers in next 5 years? Okay, so
see appraisers everywhere, pan India, not just in India, also abroad. That's my vision, and I hope that I fulfill this. So So thank you, ma'am. It thank you was so nice much. having you. Thank you. So let's meet at the next podcast and please like, share, comment, and subscribe.